associate professor, assistant professor, and research associate contributing to teaching, research, and geoinformatics. Dr. Arya has guided 2 PhD and 8 MSc and MTech students. Sir has completed significant projects like vegetation carbon pool assessment and wasteland monitoring in Haryana and has authored 170 research publications and 31 reports. Internationally, he has trained in USA and Australia. Recognized for his work, he has received multiple awards, including Best Poster and Oral Presentation accolades. He has also played key roles in organizing academic events, media advisory, and social events at CCS Haryana Agricultural University, serving as the president of Yoga Club and nodal officer of social media. Respected sir, your remarkable achievements are truly inspiring, and expressing its full depth within such a brief moment is impossible. So, without further ado, I warmly welcome you and gratefully hand over this winter school virtual stage to you. Over to you, sir. Thank you, Susmita. Good evening, everyone. I am, as Susmita told, I am Dr. Sandeep Arya, working as Professor and Head Department of Forestry at CCS Haryana Agriculture University, Hisar. Today I wish to interact with on the topic. Let me share slide. So today my topic of interaction is viable agroforestry systems of Haryana, and the work carried out by on agroforestry by CCS Haryana Agriculture University, especially at Department of Forestry. First of all, I am thankful to Dr. Jitendra Mehta, my good friend and very hardworking and dynamic personality. He is always keen to work on different conferences, organizing in different conferences, different trainings, and always on war foot. So I am special thanks to Dr. Jitendra Mehta for, and thank you, sir. Really, I appreciate your hard work. So, related to my topic, I think you all can hear me. Audible, sir. Yes. Okay, Yes. right. So as you know, Haryana is situated in northern part of India and has a geographical area of only 1.34% of the all country. Physiographically, Haryana falls in Indo-Gangetic plains, although some of the area falls in Shivalik Hills, like this area falls in Shivalik Hills. The Yamuna and Ghaggar are the two important rivers of the state. Forestry activities in the state are spread over Shivalik Hills in north and Aravalli Hills in south. Sand dunes are also there in western part of Haryana. And wasteland, saline. Sir, sorry to interrupt, sir. Yeah. सर अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स अगर अच्छा, ओके बोल ओके ओके सके तो ओके ओके, जी राइट 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 जी थैंक यू सर। सो जैसे कि मैंने बताया कि हरियाणा नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में है और इसका जो टोटल पूरे देश के जोग्राफिकल एरिया को देख अरावली हिल्स भी हैं जो ये आपको नीचे दिखाई दे रही है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, नूह में, और उसमें भी जो है ओपन फॉरेस्ट है। उसके अलावा सैंड ड्यून्स हैं जो ये आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, और
सेंटर पार्ट ऑफ हरियाणा में वाटर लॉग कंडीशंस भी हैं, जो आप सेंटर पार्ट ऑफ जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो जहां तक मैं आपको इसको हरियाणा के मामले में ब्रीफ करूं तो यहाँ हर तरह की कंडीशंस अवेलेबल हैं एक ही छोटी सी स्टेट के अंदर। ठीक है सुष्मिता, इस प्रकार से ठीक रहेगा दोनों? हेलो, यस सर। राइट? आप परफेक्ट यू कैन परफेक्ट। हियर मी? जी सर। Okay. So we have regarding agroforestry, we have two commercial species, poplar and eucalyptus. It has been planted on जो poplar और eucalyptus है ये exotic species हैं, और poplar जो है उसके लिए हमें जो है fertile soil और abundant moisture, यानी कि अच्छा moisture हमें जो है, जो बढ़िया soil है और जहाँ पानी की सुविधाएं अच्छी हैं, वो उसके लिए पॉपुलर को रिकमेंड किया जाता है उस सॉइल के लिए। तो जो आपके ये ऊपर के डिस्ट्रिक्ट है शिवालिक हिल्स के पास, यमुनानगर खास तौर से, यहाँ पॉपुलर की पैदावार होती है, और यहाँ प्लाईवुड इंडस्ट्री, नॉर्थ की सबसे ज्यादा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज पॉपुलर की जो है वो यूकलिप्टस, इसकी पॉपुलर यूकलिप्टस की यमुनानगर के अंदर है। तो ये जो न केवल हरियाणा का पॉपुलर यहाँ आता है, पूरे नॉर्थ का पॉपुलर यहाँ प्लाईवुड इंडस्ट्री में आता है। दूसरी जो स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, दैट इज यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो है हम रिकमेंड करते हैं वाटर लॉग कंडीशंस के लिए, और जहां सलाइन सॉइल्स हैं। वाटर लॉग कंडीशंस पे हम बंड्स पे करते हैं, मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। और जो दूसरी स्पीसीज हैं वो ड्यून्स के लिए है, वो आपको अभी डिटेल में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो इन ब्रीफ यू कैन सी दिस, ये जो रेड एरिया है ये आपका जो है पॉपुलर ग्रोइंग एरिया है, एंड दिस येलो कलर, आप ये जो येलो कलर देख रहे हैं, ये जो राजस्थान के साथ लगता हुआ एरिया है, इसमें ड्यून्स हैं, डेजर्ट का जो पार्ट है ये, इसमें सैंड ड्यून्स है, थार डेजर्ट का पार्ट है ये। और सेंटर पार्ट मैंने जैसे बताया कि रोहतक और इसके आसपास जो है वाटर लॉग कंडीशन है, जहाँ पानी का जो है या तो सीजनल वाटर लॉग है या कंप्लीट वाटर लॉग है। तो उस वजह से यहाँ हम इसको यूकलिप्टस यानी कि क्लोनल यूकलिप्टस रिकमेंड करते हैं, यानी कि सफेदा को रिकमेंड करते हैं। So as per FSI report, forest cover that is out of that is forest area, that is 3.63, and जो फॉरेस्ट एरिया है हमारे पास 3.5% के करीब जो है फॉरेस्ट एरिया है, और 3.5% के करीब ये हमारे पास ट्री कवर है, यानी कि आउटसाइड फॉरेस्ट जो एरिया। सो एज आई जैसे मैंने बताया, एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम्स आर so successful in the part of the state that is Haryana, Ambala and Yamunanagar, and poplar is the main species grown here. So and eucalyptus also, but main जो species है वो poplar है। इन दोनों species की अपनी मेरिट्स हैं और अपनी डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स ये है कि इसके लिए बढ़िया सॉइल चाहिए, पॉपुलर के लिए बढ़िया पानी चाहिए, अदरवाइज ये इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती चली जाएगी, और वो उसका जो आउटपुट है, जो आपकी इनकम जो एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल में हम रिकमेंड करते हैं, वो प्रॉपर अटेन नहीं हो पाएगी। और यूकलिप्टस की प्रॉब्लम ये है कि इसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जो अच्छी सॉइल में अगर आप यूकलिप्टस लगाएंगे तो वो क्रॉप को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। जहाँ पानी की कमी है वहां अगर यूकलिप्टस लगाएंगे तो वो साइड बाय क्रॉप को इफेक्ट करना शुरू कर देगा, इसलिए मॉइस्चर वहां मेंटेन करना पड़ता है। तो बोथ द स्पीसीज हैव मेरिट एंड डीमेरिट। So you can see from the slide, these are the agroforestry models. Popular agroforestry system is most successful in the state, as you know. You can see with wheat, turmeric, and bounty plantation also, with sugarcane. Initially for 2 years we grow sugarcane, because it is deciduous in nature. ये जो इसके जो है लिटर फॉल होता है, जो उस टाइम पे सनलाइट जो है वो क्रॉप तक पहुंचती है, और क्रॉप बड़ी अच्छी, व्हीट जो है बहुत बड़ी अच्छी हो पाती है। सो विंटर क्रॉप्स जो हैं, जो भी है इसमें बड़ी क्योंकि सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं रहती, और जो है लीफ फॉल होने की वजह से, डेसिडियस नेचर के होने की वजह से ये नीचे जो है सनलाइट पहुंचती है, और उससे ये नीचे जो क्रॉप है इसके, व्हीट और अदर जो भी क्रॉप्स हैं वो अच्छे से हो पाती हैं, स्पेशली इन विंटर।
or particularly in Yamunanagar, as I told, that you can see everywhere, you will see poplar is grown on field, on boundary, on banks, on even on vacant plots, and everywhere you will see homesteads and institutional area. Everywhere you will find poplar growing. So poplar you can say कि जितना इम्पोर्टेंट यमुनानगर में व्हीट और अदर स्पीसीज हैं, गन्ना, शुगर केन या गन्ना है या राइस है, उतना इम्पोर्टेंट पॉपुलर भी वहाँ पैरेलल चलता है सभी, और लोग वहाँ 3 से 4 साल में काट भी देते हैं उसको. So you can see this the popular and turmeric combination different. आप इस स्लाइड से आपको पता लगेगा कि लोकुलर है, साथ में हॉर्टिकल्चर के ट्रीज हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, साथ में टर्मरिक है, साथ में पॉन्ड है. तो कंप्लीट एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल है. कोई भी आपको जगह ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं, आप हर प्लांट को साथ में ग्रो कर रहे हैं, और कोई भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी. मल्टी स्टोरी एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स अडॉप्ट कर रहे हैं. फार्मर नई नई चीजें साथ में ट्राई कर रहे हैं. वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट, ऑल फ्रूट प्लांट्स, सब चीज इसके साथ में ग्रो कर रहे हैं. एंड जब पॉपुलर की रिक्वायरमेंट है, पॉपुलर इतना बढ़िया प्लेस कर रहा है, तो उसके लिए नर्सरी की जरूरत पड़ती है. तो पॉपुलर नर्सरी हैज बिकम प्रॉफिटेबल बिजनेस इन नंबर ऑफ प्राइवेट पॉपुलर इंडस्ट्रीज आर मशरूम इन अराउंड द Yamunanagar district. It is estimated that 2 million plants of the poplar are raised in private nurseries. So हम रिकमेंड क्या करते हैं कि भाई प्राइवेट नर्सरी बहुत ज्यादा है वहाँ, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि आपको ऑथेंटिक जो नर्सरी है, जो डिजीज फ्री हेल्दी प्लांट आपको प्रोवाइड कर पाए, सिर्फ उन्हीं से प्लांट परचेज करें. किसानों को हम ये रिकमेंड करते हैं. एंड you know means there are dozens of clones commercial grown in the country, and at least 1 dozen I can say grown in the Haryana state also. So originally there were 2 main clones, G48 and G3. They are old now but well known. These are even after so many new clones, the farmer prefers this clone, and some they have faith on these clones. And some new clones are private, like Pragati and other private biotech companies are growing some, giving some plants, नए plants provide कर रहे हैं. और कुछ में बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी भी धीरे धीरे गेन हो रही है उसके अंदर. Regarding spacing, you can say we have recommended different spacing as per requirement of the farmers. A popular tree spacing as per standard recommendation should be followed. So at least we recommend that farmers should grow 200 or lesser number of trees in 1 acre, ताकि उसके साथ में अगर इतने प्लांट होंगे तो उसके साथ में क्रॉप का नुकसान कम होगा, क्रॉप अच्छे से ली जा सकेगी. एंड अगर जिसको क्रॉप प्रायोरिटी है तो वो बंड प्लांटेशन भी कर सकता है. बाउंड्री पे जो आपकी जितने भी पर एकड़ की जो बाउंड्री है, उस पे पॉपुलर ग्रो किए जा सकते हैं, और वो स्पेसिंग एज पर रिक्वायरमेंट. और फार्मर्स मतलब किसान अपने आप भी जो है अपना एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपको हर बारी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है फार्मर भी इस मामले में. और इन वाइडर स्पेसिंग कॉम्बिनेशन जो है ना, मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको बताया भी है, जो जितना भी कम स्पेसिंग होगी उतना ही क्रॉप पे इफेक्ट ज्यादा आएगा. जितनी स्पेसिंग प्रॉपर होगी वो क्रॉप को आपको नुकसान कम होगा, क्रॉप आपको प्रॉपर काम कर पाएगी. तो हमारी रिकमेंडेशन ये है, और हम यही कहते हैं कि 200 से के आसपास प्लांट लगाएं. और स्पेसिंग जो है वो 5x4, 6x4, 8x2.5 और पेड रो भी लोग लगाते हैं, जो एज पर देयर रिक्वायरमेंट. So spacing of poplar should be, as I told, 10 by into 2 meter in north-south direction. So in boundary plantation,
we recommend that the spacing should be 3 by 3 meter from plant to plant, and it should be north south direction, so that क्या होता है कि सन की जो दो एक चीज समझने की इसमें कि पॉपुलर का क्रॉप का कंपटीशन कहाँ है। पॉपुलर क्रॉप का कंपटीशन है या तो मॉइस्चर से, कि जो मॉइस्चर क्रॉप को चाहिए होता था वो अगर पॉपुलर ज्यादा ले लेगा, या ट्री कोई भी ट्री है अगर वो ज्यादा ले लेगा तो क्रॉप अफेक्ट हो जाएगी। दूसरा है सनलाइट से। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन रिकमेंड करने होते हैं कि भाई जो मॉइस्चर भी प्रॉपर क्रॉप को मिलता रहे और आपके सनलाइट भी मिलती रहे। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर जो सन की मूवमेंट है ईस्ट वेस्ट, जो उससे जो क्रॉप को मिनिमम उसका शेड इफेक्ट, जो शेड से लॉस होता है वो मिनिमम होता है। इसलिए हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बाउंड्री प्लांटेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। कुछ फार्मर जो है जिनके लिए क्रॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टू पेयर्ड रो जो है वो भी करते हैं। इसको बोलते हैं टू पेयर्ड रो, जिसमें क्या होता है कि जो 2 by 2 मीटर की जो है रो, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, ऐसे रो लग जाती है। उसके बाद फिर जो दूसरी रो होगी ये 18 मीटर की दूरी पे होगी। सो इससे क्या होगा कि क्रॉप पे कम इफेक्ट आएगा और आपको नंबर ऑफ ट्रीज जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती चली जाएगी। और किसी भी क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप फर्टिलाइजर के मामले में ये है कि भाई एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि भाई जो पॉपुलर का लिटर फॉल होता है वो भी जो है आपकी सॉइल में ऐड होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर को करता है। और 3 से और के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की बढ़ती है। और जो भी जो बेनिफिट्स हैं वो सारे जो है वो क्रॉप को भी मिलते हैं। So especially when you grow popular and ट्री विद, तो सम उसमें क्या होता है कि जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे जो है आपके आपने कहीं कभी देखा होगा कि ऊपर से जो टिप्स हैं वो येलो होनी शुरू हो जाती है। तो जो जब आपको ऐसे सिम्टम नजर आए तो उसमें जो है जिंक सल्फेट वो डाल देना चाहिए। और उससे क्या है कि भाई आप, और डिफरेंट उसमें मेरे ख्याल आप लोगों को इसकी डिटेल की जरूरत नहीं होगी कितनी डालनी है क्या डालनी है, क्योंकि अगर वो उसके लिए आपका मेरे पास मेरा नंबर रख लीजिएगा। कभी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम आपको उसकी ईयर वाइज कितने साल का कौन सी स्पीसीज है, कितनी उसकी स्पेसिंग है, कितने प्लांट उसमें लगे हुए हैं, उसके हिसाब से हम डोज बना, एपी डालना है, इतना यूरिया डालना है और इतना जिंक डालना है। तो अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि सॉरी, ये हम अक्सर क्या करते हैं कि भाई हमारे से किसान पूछता है कि भाई हमें क्या कितनी इनकम होगी। तो हम इनिशियली हम ये रिकमेंड करते हैं कि कौन सा मॉडल सबसे बढ़िया मान के चलते हैं आप, कि भाई क्या क्या हम पॉपुलर ग्रो करें तो उसके साथ कौन सी स्पीसीज है। तो इनिशियली हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको 2 साल, शुरू के 2 साल जो है वो शुगर केन ग्रो करेंगे आप। और उसके बाद जो है विंटर में व्हीट, तो क्योंकि अब मैंने बताया ना कि डेसिडुअस है तो उसमें लीफ फॉल हो जाता है और उसमें सनलाइट जो है वो नीचे पहुंच जाती है। और लास्ट के ईयर्स में 4th 5th या 6th ईयर में जो शेड लविंग क्रॉप्स है जैसे कि टर्मरिक वो ग्रो करते हैं, ताकि उसको कम से कम जितना भी इनकम, कम से कम एरिया में ज्यादा इनकम लिए जा सके। तो प्रोडक्टिविटी पर ईयर पर हेक्टेयर जो है वो है 30 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर। जो पहले फार्मर जो डायमीटर बेस पर ट्री को सेल करता था, जैसे उसमें ओवर, अंडर और सोख्ता बोलते थे, 3 उसकी कैटेगरी बनती थी ट्री हार्वेस्ट पे। लेकिन आजकल सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, क्योंकि मशीनें
अच्छी आ गई है। पहले मशीन कंप्लीट ट्री को पील आउट नहीं कर पाते हैं। इंच जो है उसकी गर्थ है वो उसको ओवर बोलते हैं, लेस देन 14 इज अंडर। और आजकल पॉपुलर का रेट जो है वो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। प्लाईवुड इंडस्ट्री बड़ी ग्रो कर रही है आज के दिन, और खूब अच्छा उसमें फार्मर को इनकम मिल रही है। 1500 रुपये पर क्विंटल से ज्यादा का रेट फार्मर को मिल रहा है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में तो 1700 1800 भी है। जो जिस जिस ट्री का 14 इंच से ज्यादा की जो गर्थ है वो 1500 पर क्विंटल, और जिसकी उससे कम है, 14 इंच से कम है, उसको 600 पर क्विंटल जो है अप्रोक्सीमेटली यमुनानगर के अंदर उसको प्राइस मिल रहा है। एंड एज पर यू कैन सी so many trees, so many trucks are there. So as per forest department assessment, timber trade about 2000 wood trolleys traded every year in Jagadri and Yamuna. So you can imagine कि कितना लार्ज स्केल पे ट्री जो है पॉपुलर जो है वो फील्ड पे अवेलेबल है, और कितनी लार्ज स्केल पे डेली 2000 ट्राली डेली मार्केट में सेल के लिए आना बहुत बड़ी बात है। जो आप ये देखिए उसके 30 40 हेक्टेयर पॉपुलर डेली हरियाणा में कटता हो, जब इतनी ट्राली वहां सकती हैं। तो और उसके अलावा जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मीन्स आप ये देख लीजिए कि 30% तो पॉपुलर यमुनानगर का आ रहा है, और 70% दूसरी स्टेट से भी पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और नियर बाई जो स्टेट्स हैं वहां से भी पॉपुलर जो है वो यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। कितनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट हो रही है एक ट्री की वजह से। So some of the means I have recommended some last year there was a meeting with forest department and government officers. So they have asked उन्होंने हमारे से पूछा कि भाई आप क्या इसमें रिकमेंड करते हैं कि भाई किस प्रकार से पॉपुलर, क्योंकि पॉपुलर फ्लक्चुएट बहुत करता था, तो हमने एक रिकमेंड किया था कि भाई एक मिशन बनाया जाए, पॉपुलर बोर्ड बनाया जाए स्टेट का, जो रेगुलर मॉनिटर करे, ताकि जो फार्मर को जो कई बार मार्केट फ्लक्चुएशन है उससे बचाया जा सके। उसके अलावा जो है एक और रिकमेंडेशन हमने दी थी, अभी वो प्रोसेस में है, हो सकता है इन नियर फ्यूचर कभी वो लागू भी हो जाए हरियाणा में, कि मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाए। जैसे मैंने बताया आज के दिन 1700 1800 बिक रहा है पर क्विंटल, मिनिमम हो कि 1400 रुपये जो है ओवर साइज पर क्विंटल के हिसाब से रेट उसको किसान को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि और डिस्ट्रिक्ट्स में भी और जगह पे भी पॉपुलर की ग्रो होगा। पॉपुलर से ना केवल किसान को फायदा मिलेगा बल्कि आपके जो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे आम आदमी को भी, सभी, क्योंकि ट्री से सभी लोग जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ एक इकोनॉमिक भी वैल्यूज हैं इसकी, इकोलॉजिकल वैल्यू भी है, वो आती है। तो हमने रिकमेंड किया है कि भाई हैफेड का जो है कोई ऐसा सिस्टम यहाँ डेवलप हो जो टर्मरिक को डायरेक्ट वहां से परचेज करे, और उसके बाद उसको जो है प्रोसेस करके। एक और प्रॉब्लम किसानों को आती है, पॉपुलर के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो खास तौर से रहती हैं, वो ये है कि पॉपुलर में कुछ बीमारियां लगती हैं, उससे जो है वो नुकसान होता है। तो उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे क्लोन डेवलप किए जाएं जो डिजीज फ्री हो। और जहां तक प्लाईवुड इंडस्ट्री, कई बार क्या होती है कि जब ज्यादा लार्ज स्केल पे पॉपुलर आ जाता है मार्केट में, किसानों के द्वारा ज्यादा लार्ज स्केल पे जब ट्री काटे जाते हैं, तो मार्केट के जब प्लाईवुड इंडस्ट्री के पास अपना स्टॉक पूरा हो जाता है कि हमारी इंडस्ट्री रन करती रहेगी, तो वो रेट को डाउन कर देते हैं। तो वो भी एक ऐसा हो सिस्टम कि भाई गवर्नमेंट की अपनी यूनिट्स प्रोसेस चालू रहे, ना कि किसान का कोई इस प्रकार से नुकसान ना हो, और कम से कम कुछ ना कुछ जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो किसान को मिलती रहे, और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स सभी को मिलता रहे। ये थी पॉपुलर के बारे में।
दूसरा मैंने जैसे बताया था कि भाई कुछ वाटर लो कंडीशंस भी हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे क्लोन हमारे पास हैं, जिसको क्लोनल सफेदा बोलते हैं, क्लोनल यूक्लिप्टस बोलते हैं। स्ट्रेट बिल्कुल आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्ट्रेट होते हैं। इनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है करते हैं। और इसका जो मैंने जैसे बताया कि इसे जो ट्रांसप्रेशन करके ये नॉर्मल कंडीशन भी क्रिएट करता है, तो खास तौर से जो बाद कुछ सालों बाद जाल रेगुलर लगाते हैं, उसके बाद जो है वहां क्रॉप आराम से ली जा सकती है। आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है, साथ में क्रॉप लगी हुई है, सिर्फ बंड पे लगाया हुआ है। एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है और इससे फायदा भी हो रहा है। इसमें भी इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था, पॉपुलर में बहुत सारे क्लोन्स हैं। बहुत सारे क्लोन्स हैं, 52 हैं। और कितना है कि भाई जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती रहेगी वहां वो जल्दी ग्रोथ, अगर पानी की सुविधाएं कम है तो वहां उसकी ग्रोथ जो है क्रॉप के लिए ठीक हो जाती है। आप इससे देख सकते हैं कि किस प्रकार से टू पेड़ रो जो है लगी होती है। अब बायोडाइवर्सिटी सिस्टम के अंदर जो है, ये हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये इस प्रकार से जो है हमारी इनकम जो है काफी अच्छी इनकम आ रही है। बायो यूक्लिप्टस के लिए हमने रिकमेंडेशन दी थी, जिसके अंदर जो है जो स्ट्रिप प्लांटेशन है वो वाटर लो कंडीशंस के अंदर लगाई जाए, जैसे मैंने बताया। और 2.6 मीटर का वाइड का जो है वो बंड हो और 45 सेंटीमीटर हाइट बंड हो, ठीक है। और इसके जो स्पेसिंग जो है वो इतनी हो कि क्रॉप आपकी आराम से ली जा सके। दो कमर्शियल स्पीसीज के बारे में मैंने बताया था। उसके अलावा जो स्पीसीज, मेन जो स्पीसीज हरियाणा में ग्रो हो रही है, और खास तौर से जो राजस्थान के साथ लगता हुआ एरिया है, जिसको ड्यून्स जहाँ अवेलेबल हैं, वहां पर एक और स्पीसीज है प्रोसोपिस सेनेरिया, जिसको बोलते हैं साइंटिफिकली, और जिसका खेजड़ी जांडी, आप का नाम, कॉमन नेम जो है खेजड़ी जांडी के नाम से भी जाना जाता है। वो दोनों स्पीसीज एक्जोटिक थी, ये इंडिजिनियस स्पीसीज है हमारी। और ये इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये नेचुरल भी है और फार्मर्स द्वारा भी लगाई जाती हैं। और इसको किंग ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। और इसकी एवरी पार्ट ऑफ दिस, इसका पूरा का पूरा जितना भी पार्ट है, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे उसकी पॉड्स हैं, सब कुछ इसका काम में आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई इसका जो क्रॉप है इसके साथ वो बेटर कॉम्बिनेशन रहता है, और इसके अंडर क्रॉप जो है बेटर रहती है। और इसकी जो पोर्ट्स हैं वो आजकल आप लोगों ने देखी भी होगी, सांगरी नाम से जो है, उसकी इतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, 5 स्टार होटल्स में भी जो है ये मिलती है। इसके फ्लावर्स जो हैं वो उससे हनी बी का बड़ा हनी तैयार होता है, बड़ा अच्छा हनी होता है। और पोर्ट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू है, बड़े बड़ी 5 स्टार होटल्स में, बड़ी बड़ी शादियों में आप लोगों ने देखा होगा, उसकी जो है पोर्ट्स की सब्जी बनती है। सो मैंने जैसे बताया कि क्रॉप का इसका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। और जो भी क्रॉप इसके अंदर होगी, नीचे ग्रो होगी, वो ज्यादा बेटर ग्रो करेगी एज कंपैरिजन टू ओपन एरिया। क्योंकि क्या होता है कि इसके आपको पता है राजस्थान में और इसके एडजेसेंट एरिया में गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये उसके नीचे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो क्रॉप को जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो
उससे बचता है क्रॉप, और उसके अंदर क्रॉप जो है बढ़िया होती है। दूसरा कारण है कि इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी है, इसके लीफ जो सॉइल में ऐड होते हैं उस एरिया के अंदर जहाँ एक ट्री लगा हुआ है, तो उसमें भी उसका ऑर्गेनिक मैटर मैटर जो है ऐड होता है, और उससे भी उसकी क्रॉप बढ़िया होती है। तो इन नट सेल जो है जो ओपन के मुकाबले में आपके इस ट्री के अंदर क्रॉप ज्यादा होती है, एज कंपेरिजन टू आप यूक्लिप्टस और पॉपुलर में देखेंगे तो उसका बिल्कुल एडवर्स ऑपोजिट है। ये डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन हैं। और ये जो मैंने बताया कि सांगरी, ये सांगरी इसकी बनती है, ये पोर्ट्स की। और वैल्यू एडिशन जो है इस प्रकार से, और प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल के लिए मिलते हैं। तो स्लाइड जो है इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो ट्री के अंदर जो था उसकी जो है क्रॉप की यील्ड ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ओपन। तो ये टेबल से भी, डाटा से भी ये प्रूव होता है कि जो क्रॉप, जो मैंने बात बताई कि ट्री के अंदर जो है क्रॉप ज्यादा होती है। तो वी हैव आल्सो गिवन रिकमेंडेशन, इसके बारे में भी हमने रिकमेंडेशन दी थी कि खेजरी के मामले में क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो जो है कुछ, क्योंकि खेजरी बड़ा स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है, तो उसके लिए ये है कि कुछ ऐसी डेवलप किया जाए, कुछ ऐसी स्पीसीज ऐसे क्लोन मल्टीप्लाई करके ऐसे दिए जाएं। और राजस्थान में कुछ वैरायटी है भी, एक खास शोभा, वो अच्छी चलती है, लेकिन वो भी स्लो ग्रोइंग है। ऐसा कुछ काम हो जो, क्योंकि पर्टिकुलरली जो एरिड जोन के जो सेंटर हैं जोधपुर और बीकानेर, वो इस पे काम भी कर रहे हैं। तो हाई जो सुपर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अगर फार्मर के पास होगा तो ये मॉडल और भी ज़्यादा बढ़िया डेवलप हो पाएगा। और वैल्यू एडिशंस के अंदर कुछ ऐसी कुछ किया जाए जिससे जो है और भी अधिक उसको फार्मर को रेट मिल सके। तो I think most of the thing I have cleared in available agroforestry models, but if you have any query, I think that Dr. Mehta, जी सर। टाइम भी होने को है, या और डिटेल कुछ बतानी हो तो मैं इसके बारे में आपको जनरली कुछ हरियाणा के बारे में कुछ पूछना चाहें तो हम उसके बारे में बता सकते हाँ, हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, सो हाँ जी, सुष्मिता पूछ रही है अभी। हाँ जी। Thank you, sir. Thank you for this valuable insights on crucial topic of viable agroforestry system in Haryana. We have some questions from participant side. Sapna is asking, sir, fertilizer के लिए कुछ microbes भी डालते हैं क्या? नहीं, ऐसा क्योंकि ट्री है और इसमें माइक्रोब्स के जो इतनी महसूस नहीं होती। आपका क्या है, क्रॉप कम्बिनेशन के साथ हम ग्रो करवाते हैं, तो जो क्रॉप का जो फर्टिलाइजर और जो ऐड होता है वो ट्री को भी मिलता है, तो उसके लिए अलग से कोई माइक्रोब्स डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जी, thank you, sir. And sir, Dr. H.R. Dhanetia is asking, हम्म। how is turmeric grown from how is turmeric grown from seeds or rhizomes? Which variety is the best one? Which type of weather conditions are needed to grow? एज आई टोल्ड कि टर्मरिक जो है वो शेड लविंग प्लांट है। उसको आप एक तो जो उसके लिए सॉइल अच्छी चाहिए, वो ड्यून्स में नहीं हो सकती, खासतौर से जो मैंने एरिया बताया उसमें नहीं हो सकती। वो सिर्फ यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला, इन करनाल, उन डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकती है हरियाणा के, जहाँ अच्छी सॉइल है और इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो है शेड शेड जहाँ अवेलेबल है। क्योंकि हम टर्मरिक, आप एक मॉडल समझने की जरूरत है, टर्मरिक हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं उसमें। एज सच टर्मरिक किसी को भी हम विदाउट पॉपुलर या वैसे रिकमेंड नहीं कर रहे। हम टर्मरिक क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि फोर्थ और फिफ्थ ईयर तक जाते हुए ट्री का जो कनोपी कवर है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि नीचे जो है वो सनलाइट नहीं पहुंचती। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको जो है क्योंकि आप फील्ड अगर खाली रहेगा तो वो
उसकी प्रैक्टिसेस में भी आपको जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपका जो है उसमें वीड होने शुरू हो जाएंगे, जिससे ट्री की ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। तो उसको मेंटेन भी रखना जरूरी है फील्ड को, तो साथ में कुछ इनकम भी हो जाए। तो ये उसके लिए सिर्फ जहाँ ट्री है उसके साथ में ग्रो करने के लिए सिर्फ रिकमेंडेशन है। अदरवाइज किसी को हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको ओपन एरिया में टर्मरिक लगानी है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकली वाइबल मॉडल नहीं रहेगा। आपकी अगर दूसरी क्रॉप वहाँ हो पा रही है तो फार्मर उसी को ग्रो करे, टर्मरिक को ग्रो ना करे। सिर्फ और सिर्फ 4th 5th 6th ईयर के अंदर अंडर ट्रीज रिकमेंड कर रहे हैं। Thank you, sir. हम्म। Our next question is from Venkatesh L. What is the price of pulpwood of poplar per ton? Well, that can What be is converted. expected productivity of poplar per hectare? एक्चुअली देर इज नॉट मीन्स यू कैन, आप ये नहीं कह सकते कि आज के दिन ये रेट है या ये मार्केट है। मैंने बताया कि 1500 से ऊपर का रेट चल रहा है, मैंने नहीं कहा कि 1500 रेट चल रहा है पर क्विंटल के हिसाब से। वो 1600 भी हो सकता है, 1700 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है एज पर। अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि एक 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 इंडस्ट्री लगी हुई है, उसको रेगुलर रॉ मटेरियल चाहिए, उसके पास जितनी लेबर भी लगी है, एक एक इंडस्ट्री में 200 आदमी लेबर, 400 लोग लगे हुए हैं, उनको रूटीन का काम चाहिए, डेली का काम चाहिए। अगर उनके पास पॉपुलर अवेलेबल नहीं है और वो इंडस्ट्री के 200 आदमी को बैठा के आप उसको उनकी उनकी सैलरी नहीं दे सकते, वाइबल मॉडल नहीं रहेगा। वो लेबर भागना शुरू हो जाएगी, उनकी सैलरी नहीं पाएगी। और इंडस्ट्री लेबर पे डिपेंडेंट है और और रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है। जब तक आपको प्रॉपर रॉ मटेरियल मिल रहा है, जब तक ठीक चल रहा है, जिस दिन भी वो कम और ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप मॉडल, आप इकोनॉमिकल मॉडल क्या रहेगा कि आपकी रेगुलर जो है वो। इसलिए हम किसान को भी क्या रिकमेंड करते हैं, सपोज किसी के पास जो है 10-12 एकड़ जमीन है, कोई पूछता है आपसे कि भाई आपको, मुझे मैंने पॉपुलर ग्रो करना है, आप तो आप बोलेंगे कि ठीक है ग्रो कीजिए। हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप इनिशियली 3 एकड़ में पॉपुलर ग्रो कीजिए 1 साल में, फिर नेक्स्ट ईयर 3 एकड़ में, नेक्स्ट ईयर 3 एकड़ में। आपके पास फिर क्या होगा कि एकदम से ऐसा प्रेशर नहीं आएगा कि भाई आपने 10 एकड़ को एकदम से काटना है। मार्केट में एकदम से 10 एकड़ जाएगा, मार्केट में एकदम से ज्यादा पॉपुलर जाएगा, तो वो उसका रेट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए एक उसका जो है, अच्छा फिर रेगुलर इनकम बनी रहेगी। जिस दिन आपका जो फर्स्ट इनिशियली आपने पहले ग्रो किया था वो हार्वेस्ट होगा, नेक्स्ट ईयर दूसरा हार्वेस्ट होगा, फिर बनी रहेगी, रेगुलर इनकम किसान के पास आती रहेगी और मार्केट में गलत नहीं आएगा। मार्केट की जो एक टेंडेंसी होती है कि भाई आपके पास ज्यादा माल आना शुरू हो गया तो आप उसका रेट कम कर देते हैं, वो सिचुएशन भी नहीं आएगी। फिक्स कुछ नहीं है। मैं आज मुझे आप अगर मान लो ये बोले कि भाई जी डॉक्टर साहब ने कहा था कि 1500 का रेट है, 1600 का रेट है, 1700 का रेट है, ये मार्केट है, कोई फिक्स नहीं है। मैंने मिनिमम कहा है कि 1500 से ऊपर का रेट है, वो 1600 भी हो सकता है, 1700, और ऐसी भी ऐसा भी नहीं है कि 1500 ही फिक्स है, 1500 से कम भी हो सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। पर क्विंटल का मैंने रेट बताया है, वो डिपेंड करता है आपकी गर्थ उस पर कितना उसका बायोमास। थैंक यू सर। सर विजय कुमार पूछ रहे हैं यूपी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर एरिया के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट हाँ, रहेगी डॉक्टर? यूपी में मैं जहाँ तक मुजफ्फरनगर का मुझे आइडिया है, वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़िया हैं। अगर ना हो तो मुझे ओबीसी में बता सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़िया है और सॉइल भी बहुत अच्छी है मुजफ्फरनगर की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और वहाँ 413 और भी अलग अलग क्लोन्स हैं जो मॉइस्चर के लिए और उसके लिए अवेलेबल हैं। उनके एरिया में कौन सा अवेलेबल है वो मुझे अगर बताएंगे तो मैं उनमें से उनको एक बता दूंगा उनको इजीली, क्योंकि क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूर से लाना एक ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाता है। तो वहाँ जो लोकल उनके पास अवेलेबल है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से उनके पास अवेलेबल है, उनमें से मैं बता सकता हूँ कौन सा बेटर। आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिए इनको, किसी को भी हो मुझे व्हाट्सएप पे डाले और मैं उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर, क्योंकि अगर जी अदरवाइज थैंक यू। वो मैं बताऊंगा कि भाई ये आप लेके आए, वो मिलता होगा बहुत दूर उनको, तो ऐसा नहीं है। उसके उसका भी उसके लेवल का है, उससे मैच करता हुआ स्पीसीज हो सकता है उनके लोकल ही अवेलेबल हो, तो उनको वही रिकमेंड कर देंगे। थैंक यू सर। सर Sapna is saying very nice. Thank you so much, or just like for inviting such knowledgeable persons and थैंक यू सपना। person and
Like everyone is saying a lots of thanks to you, sir. Thank you Thanks so to much for everyone. sharing such valuable Thanks, you knowledge should with us, thanks sir. to Dr. Jitendra Mehta first. थैंक यू सर. सर आप इनको एक क्वेश्चन और आया शायद हाँ आएगा. जी, हाँ। सुष्मिता, Yes, sir. क्वेश्चन देखा आपने? ये है, व्हाट आर द मार्केट चैनल ऑफ पॉपुलर वुड? Uh, मार्केट चैनल sorry, की sir. कौन से एरिया की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भी अवेलेबल हैं. और वेंकटेश आस्किंग. वेंकटेश, काइंडली कैन यू टेल मी योर स्टेट explain. प्लीज? Otherwise, you can unmute yourself if you want to direct ask. Otherwise, tell me that market स्टेट state. वैसे मैं जनरली मैं बता देता हूँ. क्या होता है कि अगर उस एरिया में ट्री अवेलेबल हैं और तो प्लाईवुड इंडस्ट्री भी वहाँ अवेलेबल है. अगर नेचुरली वहाँ ट्री ग्रो होते होंगे तो प्लाईवुड इंडस्ट्री भी अवेलेबल होगी. क्योंकि इसमें देखो एक हार्ड फैक्ट है, वो समझना पड़ेगा. अब अगर जितनी दूर से प्लाईवुड इंडस्ट्री जितनी दूर होगी, सर ये उतनी कर्नाटका से, कर्नाटका. हाँ, कर्नाटका में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कर्नाटका में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ ट्रीज रेगुलर मिलते होंगे और वहाँ तो मीलिया डूबिया भी है. मैंने अभी आपसे पूछा था, मैं कुछ और भी आपको बताता कि क्योंकि टाइम की भी कंस्ट्रेंट रहते हैं. तो वहाँ तो मीलिया डूबिया बड़ी अच्छी चलती है. वेंकटेश जी, आप यू शुड ग्रो मीलिया डूबिया देयर एंड plywood industry will prefer that also. And most of the time private people come to your field and they take direct from your field. इसमें होता क्या है सर, इसमें किसान को सिर्फ थोड़ा सा कनेक्ट करने की बात होती है. कोई भी लोकल प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको संपर्क करें और उससे थोड़ा बार्गेन करें. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आजकल बहुत बड़ा इशू है. आपको अगर कहीं से दूर ले जाना पड़ गया सेल के लिए तो उसका रेट बहुत कम हो जाएगा. तो लोकल जो प्राइवेट प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है उनको कॉन्टेक्ट करके और उनसे बल्कि कॉन्टेक्ट फार्मिंग की जाए कि जी इतना मिनिमम आपने रेट मुझे लेना पड़ेगा, मैं आगे ग्रो करूंगा, आपको मैं रेगुलर आपको ही दूंगा, लेकिन मुझे इतना रेट आपको जरूर देना पड़ेगा. इस प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है. Thank you, sir. I think that's all from participant side. Thank you so much for your engaging and insightful presentation and for addressing all the participant queries. I'm confident that participants have greatly benefited from your extensive expertise. We wish you continued success in your path. Thank you once again, sir. Thank you so Thank you, much. Susmita Thank ji. you, Dr. Thank you Saab. very much. Again, thank you to all and special thanks to Dr. Jitendra Mehta. Thank you so much, sir. Okay. Today, it is my special honor to introduce our second distinguished speaker, one and only Dr. Sahadev Singh, sir. Sir is an expert in the areas of agronomy, watershed management, plant protection, and horticulture. Dr. Singh holds an MSc and PhD from Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi. He has served for about 33 years in various capacities in research, education, extension, and development fields in ICR Department of Agriculture, Corporation and Farmer Welfare, Ministry of Agriculture, Planning Commission, and educational institutions. He has worked as Deputy Commissioner and Head of the Policy in the Planning Commission, Government of India, in monitoring and implementation of interministerial program of 5 central ministries from 2008 to 2013. Dr. Singh is presently working as a professor and dean of the School of Agriculture at Galagottias Universities. Prior to taking up the current role, Dr. Singh worked for about 5 years as a professor of agronomy and dean of the School of Agricultural Sciences, GD Goenka University, and director at the School of Agricultural Science, Jaipur National University. He has supervised and guided 8 PG students in agronomy.
Sir, your influence is immense, a masterpiece of success that reverberates through the lives of so many. To encapsulate its entirety in such a brief moment feels truly inadequate. With great respect, I warmly welcome you and gratefully hand over this winter school stage to you. Over to you. Sir, sir, can you hear me, sir? सर अनम्यूट कीजिए सर. Yeah. It was, I was not able to unmute, but now it's okay. So am I audible now? Audible sir. Okay. Thank you. Good evening, everyone. And today, I'm very thankful to organizer and really at this evening time, it is good to have interaction with the participants from different parts of the country. And I'll be talking about this agri-technology for sustainable agriculture in rain-fed and irrigated areas. How this agriculture technology could be helpful for our enhancing production, and so that this we can enhance the production our country on a sustainable manner. Just it's just now it's visible, the slide. Visible sir. Okay. So especially I'll be talking this technologies, agriculture technology, new technologies for sustainable agriculture, and by giving a special focus on rain-fed areas. Of course, some of the technologies which are very much suitable for irrigated areas also that we'll be covering later part of this presentations. And when we just see the scenario of our water in the country, how the water is used in a different aspect like energy, industry, or domestic purpose or irrigation purpose, then 70% of the water especially used for irrigation and agriculture system. And though we have enough rainfall, but a lot of efforts are required, especially in dryland and rain-fed areas, to conserve our water so that this loss of water every year could be saved and could be utilized for irrigation and also for domestic purposes. And in this rain-fed areas, that is, though it covers about 55%. Sorry to interrupt, sir. Sir, Yeah. sir, can you please like start slideshow of this presentation? It's not in slideshow. Okay. Full screen mode sir. Full screen mode. I think from my side it is moving, but slide is moving or not? It's Sir, moving. like it's Moving, It's no moving. problem. it is, Okay. but it's not in slideshow. Yeah, sir. Right. Not
And sir, can we please can you would be, if you would be bilingual, that would be a great help, sir. Like our students, our participants are from north and south side both. So So you want in which language? like Hindi and English mix. Both. Okay, okay. Ji, So thank you, sir. that especially in our country, you must have seen that about more than half of the area, आधे से ज़्यादा एरिया हमारा जो है रेन फेड है. And this rainfed area contribute about 40% production and support 50% human being out of this 139 million hectare area. Lot of schemes are being implemented. हमारा भारत सरकार से बहुत सारा स्कीम्स है जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है. उससे पहले हमारा ये IWMP इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम था. द नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम. लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर which help in providing irrigation infrastructure for covering more areas and also for conservation of water purposes, and that's help a lot for enhancing our production. And if you see the contribution, जैसे रेनफेड एरियाज में आप जानते हैं कि बाजरा है, सोरगम है, मक्का है, पल्सीज है, ओल सीड, these are covering in larger areas, and wheat और राइस हमारे हैं जो दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड एरियाज. एंड सोरगम जैसे है हार्डी क्रॉप्स है. 88% जो है दैट इज ग्रोन इन रेनफेड एरियाज. रेनफेड जो टोटली नॉर्मली रेन पे डिपेंड करता है. और हमारी इसलिए पल्सीस और ऑयल सीड है, इनका प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि कुछ कॉन्स्टेंट है, जैसे वैरायटीज है ड्राउट एरियाज में, और ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटीज इतना डेवलप नहीं है और यूज भी नहीं हो रहा. कहीं ना कहीं हमारा एक्सटेंशन का भी इशू होता है. तो 23 का ये डाटा है जिसमें ओवरऑल फूड ग्रेन क्रॉप्स में 43% कवर्ड अंडर रेनफेड, एंड wheat of course that is grown in irrigated area, but rest of the crops major coverage in rainfed areas. And if you see the farmers field and the yield, and also at the scientific field, that average irrigated और dryland areas, तो डबल का फर्क है कि इरिगेटेड एरियाज में प्रोडक्शन डबल करीब करीब है. लेकिन यदि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से और ड्राउट रेसिस्टेंट अच्छा वेराइटीज एक्सटेंशन एक्टिविटीज से बढ़ा सके तो ये गैप हम काफ़ी कम कर सकते हैं. और अभी डबल है, उसको हम काफ़ी हद तक 75% तक प्रोडक्शन रेनफेड एरियाज में भी कैन डू इट. और यदि फार्मर्स फील्ड और हमारा पोटेंशियल यील्ड आप देखें कि कितना है, तो वो भी करीब 20% से 30% और 40% 50% तक डिफरेंट क्रॉप्स में, डिफरेंट सोइल्स में फर्क है. एंड दैट इज मोर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज रिक्वायर्ड एट फार्मर्स फील्ड कि फार्मर्स अच्छी वैरायटी अडोप्ट करें और अच्छा ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करें, इम्प्रूव्ड वैरायटी यूज करें, जिससे प्रोडक्शन में गैप को हम कम कर सकें. और जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की प्रॉब्लम जो आती है, दैट इज इनएडिक्वेट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. रेनफॉल का है, हर साल चेंज होता रहता है, जिससे हमारा कभी ड्राई स्पेल आ जाता है, बीच में गैप होता है, कहीं प्रोडक्शन कम होता है. तो ये दैट अफेक्ट्स आवर ओवरऑल प्रोडक्शन. और लेट मानसून आता है, अर्ली मानसून आता है, और जमीन भी हमारी जैसे सैंडी सोइल से राजस्थान है, दैट उसका मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम है, और उसमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी, न्यूट्रिएंट्स भी कम है, जिससे ये इश्यूज है हमारे. तो इन इशू को हम काफ़ी हद तक जो डिफरेंट एरियाज में है, आप यदि आप देखेंगे तो न्यूट्रिएंट्स में भी काफ़ी कमी होती है. जैसे जिंक है, बोरोन है और मैग्नीज है, ये काफ़ी कम हो जाते हैं डिफरेंट एरियाज में. ये भी एक हमारे लिए एक चैलेंजिंग है. और यदि आप फर्टिलाइजर कंजप्शन देखें तो इरिगेटेड और रेनफेड में बहुत ज़्यादा फर्क है फर्टिलाइजर का भी, क्योंकि उसमें कई सारे कारण हैं.
that in rain-fed areas, the economic condition is not good for the farmers, and many times they are not able to apply the fertilizers that affects their yield. जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, वहाँ किसान इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि फर्टिलाइजर वगैरह सब दे। तो उसमें हमें फोकस उसके साथ साथ में ये भी कर सकते हैं कि रिसाइकलिंग हम करें, और उसका फोकस हम ऑर्गेनिक भी हम करें। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी अनाउंस किया है, नेचुरल फार्मिंग, उसमें भी 2 मिलियन हेक्टेयर एरिया का टारगेट रखा है, उसमें सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है और किसान भी एफर्ट करे, जिससे रिसाइकलिंग करे, वेस्ट मटेरियल्स है, मल्चिंग है। तो केमिकल की बजाय जैसे खरपतवार है, पेस्ट है, इनके लिए तो आप अपना बायोलॉजिकल मेथड से या मल्चिंग यूज करें, जो अवेलेबल होता है, धान का पुआल है और इस तरह से, या भूसा है, मस्टर्ड का होता है, पल्सीज का होता है, तो वो भी हम फैला सकते हैं। लाइव मल्च है, वो भी हम कर सकते हैं, और जिससे वीड का प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक ठीक कर सके। और जो हमारी ट्रेंड है, आप यदि देखेंगे तो उसमें इवन बाजरा का एरिया भी हमारा कम हुआ है, पिजन पी का भी एरिया कम हुआ है ड्राईलैंड में। और इसको हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड वैरायटी लेके और हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इस एरियाज में पल्सीज हम ले सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि पल्सीज का हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, और करीब 75,000 करोड़ रुपए का हर साल हम इंपोर्ट करते हैं पल्सीज और ऑयलसीड का। तो उसको हम और ये दोनों कमोडिटी स्पेसिफिक क्रॉप्स है, जिसमें पल्सीज, ऑयलसीड, that is especially grown in rain-fed areas, and these crops production could be enhanced by using technologies and also improved varieties, locally available technologies, तो जिससे काफ़ी हद तक हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और वैरायटी इम्प्रूवमेंट है, टोलरेंट वैरायटी की ज़रूरत है। और अर्ली स्टेज पे आपने देखा होगा कि जब हम बोते हैं तो स्लो ग्रोथ होता है, तो उस समय मॉइस्चर उड़ जाता है ज़मीन से। तो ऐसी वैरायटी यूज करें जिससे ग्रोथ फास्ट हो अर्ली स्टेज में, तो उससे हम काफ़ी हद तक जो ड्राउट सिचुएशंस है उससे फेस कर सकते हैं। और जेनेटिक पोटेंशियल है, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है उसको यूज करें। शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप्स को यूज करें, जो हमारे ड्राउट आते हैं उससे फेस करने के लिए। और जो है जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स है उसको यूज करें, जिससे सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और काफ़ी हद तक ड्राउट से भी हमें फेस करने में मदद मिलेगी। और दूसरा है कि डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, जैसे फूरों में बोना, रिज पे बोना, या हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना के, बन बना के उसमें मॉइस्चर कंजर्व करें, या उसको पतला पतला बेड बनाए और डेड फूरो बनाए जो गहरा हो, और टिलेज प्रैक्टिस यूज करें, ताकि हम जो है अच्छे से उसमें प्रोडक्शन को इनहेंस कर सके। Then, कुछ पूसा हाइड्रे दैट इज हाइड्रोशल है, जो सोयल कंडीशनर है, जो डेवलप किया है, और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो कंपोजिशन है हाइड्रोजल का, वो तो ऑर्गेनिक है, और वो पेटेंट ले रहे हैं, तो इसलिए उनका जो कंपोजिशन है एक्चुअल, तो उसको अभी नहीं बता सकते।
और सेमी सिंथेटिक है, अच्छा है। पूसा हाइड्रोजल जो है दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर और रिड्यूसेस द नर्सरी स्टेब्लिशमेंट पीरियड और लीचिंग ऑफ द हर्बिसाइड और जो हमारे फर्टिलाइजर है उसको भी कम करता है। ये पूसा से डेवलप किया है, काफ़ी अच्छा है और अवेलेबल भी रहता है, आप ले सकते हो उसको। और उसी तरह से हमारा जो है जल शक्ति है, तो वो भी इसमें काम आता है। और मल्चिंग है, जैसे सोयल मल्च है, स्टेबल मल्च है, स्ट्रा मल्च है, और लाइव मल्च में जैसे पल्स वगैरह हम ग्रो करते हैं, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। प्लास्टिक मल्च है और वर्टिकल मल्च, जैसे जमीन में गड्ढे खोद देते हैं छोटे छोटे, तो उसमें मॉइस्चर कंजर्व होता है। इस तरह से हम वाटर कंजर्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी यूज इट। और जो पौधों से ट्रांसपिरेशन होता है उससे वाटर काफी लॉस होता है, दैट कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपिरेशन प्रेजेंट, जैसे एट्राजिन है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, या मोबाइल लीफ है, और दूसरे रिफ्लेक्टिव टाइप है, ग्रोथ रिटार्डेड है, क्लोराइड, मैलिक हाइड्रोजाइड। और इस तरह से जैसे इन सीटू मॉइस्चर होता है जो फील्ड के अंदर होता है, एक्स सीटू जिसमें हम तालाब बनाते हैं, तालाब का गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल जाता है कि जिससे तालाब को हम वाटर उसमें इकट्ठा करें बरसात के समय पे, और दैट पूरे साल वो पानी यूज कर सकते हैं। इसको एक्सी2 में आता है कंजर्वेशन। और जब जरूरत होती है प्रोटेक्टिव इरिगेशन की, कि जिससे हम अपनी इकोनॉमी की ले सके, तो देन यू कैन अप्लाई द वाटर। और इरिगेशन एट क्रिटिकल स्टेज और प्री सोइंग इरिगेशन के लिए इसका पानी इस्तेमाल होता है। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट सोइल्स अंडर रेनफेड, जैसे रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन है। आजकल धान मशीन से काटते हैं तो काफी रेजिड्यू होता है, और आप लेग्यूम इंटरक्रॉप ले सकते हो, रिजर्व फ्लो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, रिचार्ज वेल बनाते हो, कंपार्टमेंट बंडिंग है, जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना के बंडिंग करते हैं जिससे मॉइस्चर कजर हो जाए। इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स है जो सोरगम, पिजन पी, सोयाबीन में है, तो उसको इस्तेमाल करके और काफ़ी हद तक हम मॉइस्चर कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के रिचार्ज वेल भी है, और काफ़ी हेल्पफुल है ये फार्मर्स के लिए। इस तरह से आप यदि देखेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक हम मॉइस्चर कंजर्व करते हैं। और इस तरह डिफरेंट क्रॉप्स में है, डिफरेंट इंटरक्रॉपिंग है, जो डिफरेंट एरियाज में एरिया वाइज स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। डेक्कन एरियाज है, महाराष्ट्र है, ईस्टर्न है, ईस्टर्न यूपी है, देन आपका कर्नाटक है जहाँ पर काफ़ी ड्राउट होता है, ड्राउट एरियाज भी है, राजस्थान है। अलग अलग तरह के क्रॉपिंग सिस्टम है। और पोंड भी बनाते हैं हम, डंकर पोंड भी बनाते हैं, वाटर पोंड भी बनाते हैं, जिस तरह से। और काफी स्पॉन्सर्ड स्कीम है दैट इज आल्सो helpful for providing proprietary agronomic practice, database for quality soil resources, और INM है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन, एक्सटेंशन एजेंसीज का रोल है इसमें काफ़ी, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। देन रेनफेड एरिया कंपोनेंट है, ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, सोयल हेल्थ वगैरह भी हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कवर्ड है। और कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी है, जैसे बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, चाहे इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट की स्कीम्स काफ़ी हेल्पफुल हुई है, and that improves the groundwater level, improved crop yields by 30%, diversified income through the agroforestry, जैसे agroforestry, agriculture, हनी बी, सो डिफरेंट एक्टिविटीज इसमें लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल ये केस स्टडीज है। और इसी तरह से
सदर्न रीजन में भी है, और वहाँ भी 19% वाटर शेड से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स है जिससे डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्रॉपिंग सिस्टम डाइवर्सिफिकेशन, फार्मिंग सिस्टम डाइवर्सिफिकेशन, तो दोनों को इसमें महत्व दिए गए हैं। और इस तरह से सक्सेस स्टोरीज आंध्र प्रदेश का भी है, महाराष्ट्र का भी है, अलग अलग एरियाज में है। ऑन एन एवरेज 30 to 50% that helps in enhancing the water conservation and also enhancing the production. Then there are certain specific strategies that is helpful for this by involving community participation. Then integrated farming system, integrated cropping system, adoption of rain-fed technologies with greater reach in distant areas, especially tribal areas and Odisha and the eastern UP, eastern eastern part of the country. Then there are both on-farm and off-farm conservation technologies that are helpful for enhancing soil moisture, and that's helpful for soil conservation. And database also very helpful in developing climate change adaptation and जो हमारा ड्राउट आता है उससे हम फेस कर सके, इसलिए डाटाबेस से हम मॉडलिंग बनाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि ड्राउट 3 साल में आ रहा, 5 साल में आ रहा, 10 साल में आ रहा, किस मंथ में आता है, किस क्रॉप के ड्यूरेशन में आता है, जिससे हम स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्लान कर सके, अपनी कंटीजेंसी प्लान कर सके। और कंटीजेंसी प्लान इसलिए करते हैं कि एक बार सपोज ड्राउट आया और उस समय हमारे पास खत्म हो गया, तो उस समय फिर हमारे पास नहीं रहेगा, तो इसलिए ये सब हमारी जरूरत होती है कि हम कंटीजेंसी प्लान करके रहे। देन देर आर आल्सो सम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी विच आर हेल्पफुल फॉर इरिगेटेड एज वेल एज रेनफेड एरिया, like genetic enhancement, yield enhancement होता है, एक रेसिस्टेंट अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस होता है पौधे के अंदर, और इंटरनल फैक्टर से भी होता है, के लिए हम जेनेटिक इंप्रूव कर सकते हैं। आई है उसको कैन हैव दिस जेनेटिक इंप्रूवमेंट। अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले 6 मिलियन टन हम व्हीट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन मार्च में टेम्परेचर बढ़ गया, तो उससे के 2022 में, तो वो फिर हमारा जो 6 मिलियन टन हम बाहर भेज रहे थे उतना ही प्रोडक्शन कम हो गया। तो सडन टेम्परेचर से ये इसका हमारे पास डाटा भी नहीं था कि जिससे हमें पता लग सके, मॉडलिंग भी नहीं कर पाए थे कि हम इस तरह से फेस करेंगे ड्राउट जो है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से 6 मिलियन टन कम हुआ और हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए और फिर बैन करना पड़ा हमें। तो ये 2022 की सिचुएशन है। इस तरह से कभी भी स्ट्रेस होता है, टेम्परेचर का होता है, ड्राउट का होता है प्रॉब्लम, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। इवन हमारा सब बैलेंस बिगड़ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मैनी अदर थिंग्स, एंड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द इनकम ऑफ द फार्मर्स। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, लैंड लेवलिंग आजकल है, क्योंकि यदि लैंड लेवलिंग है आजकल लेजर से लैंड लेवलिंग करते हैं और उसको क्लस्टर एरिया में रख सकते हैं, बिकॉज लैंड लेवलिंग हर किसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बड़े फार्मर्स रख सकते हैं या क्लस्टर में उसको रख सकते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग आवर लैंड लेवल एंड इट कुड सेव द वाटर। There are many farm mechanization techniques that save the labor, such as seed drills, harvester, combines. That is very helpful, and especially Punjab, Haryana, other states where they are facing a lot of problems. Then these harvesters could be used, and threshers, combined harvesters, thresher, that is helpful with less labor, they can do it.
कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर लाइक डायरेक्ट सोइंग है, रिड्यूस और मिनिमम टिलेज है, सरफेस इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू को हम जमीन में ऊपर मिलाते हैं और कवर क्रॉप्स करते हैं जिससे मॉइस्चर का ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम मॉइस्चर कंजर्व करते हैं और इनहेंसिंग आवर प्रोडक्शन। That biotechnology, nanotechnology in crops to enhance their genetic potential, including agriculture productivity and help in sustainability of agriculture. Agriculture biotechnology is being used as a scientific tools and techniques to enhance genetic potential, reduce risk due to biotic stress जो क्लाइमेट पैरामीटर से होती है और पौधों के अंदर से भी ड्राउट रेसिस्टेंस में बायोटेक्नोलॉजी से हम काफ़ी हद तक रेसिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मोलिकुलर मार्कर्स है, आजकल एनबीपीजीआर काफ़ी अच्छे काम कर रहा है उसमें, बाकी और आईसीआर इंस्टीट्यूशन भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटीज डेवलप की है। तो जेनेटिक्स से हम पौधे की है प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और ड्राउट में हेल्प होता है, हाई टेम्परेचर से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं हाई टेम्परेचर में भी। देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, प्रिसीजन में क्या है कि एक्यूरेट हम दे, जिससे हमें एक्चुअली हम डबलिंग ऑफ प्रोडक्शन जब भी कर सकते हैं जब हम इनपुट कॉस्ट घटाएं और फसल का दाम अच्छा मिले। तो इनपुट कॉस्ट घटाने का एक ही तरीका है जो हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर करते हैं कि हम ऑटोमेशन करें, वाटर की सेविंग करें, इनपुट की सेविंग करें और जो किसान के पास अवेलेबल है मटेरियल्स रिसाइकलिंग करें, तो वेस्ट मटेरियल्स को यूज करें, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करें, जिससे उसको कम से कम खर्चा करे इनपुट में और उनका प्रोडक्शन अच्छा हो और पोल्यूशन भी ना हो और उसको दाम भी अच्छे मिल सके। इसमें ऑर्गेनिक में थोड़ा हमें टेक्नोलॉजी पॉपुलराइजेशन भी करनी चाहिए जिससे अच्छा इंफॉर्मेशन मिले कंज्यूमर को एंड कंज्यूमर कुड पे द गुड प्राइस फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो इसमें काफ़ी सेंसिटाइजेशन की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सटेंशन की जरूरत है सो दैट लाइक आजकल हम एफपीओ बना रहे हैं उसी तरह कंज्यूमर का भी ग्रुप बनाना चाहिए जिससे कंज्यूमर और फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन could interact each other and they can know the ट्रेसेबिलिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आज प्रोडक्ट खा रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है। तो ये ट्रेसेबिलिटी का होना भी आजकल बहुत जरूरी है, इसलिए ये कंज्यूमर और फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, यदि हम इनका अच्छा इंटरेक्शन करें और हम यूथ को इन्वॉल्व करें इसमें, एफपीओ तो हम बना रहे हैं, यूथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को भी हम करें, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज है या सिटी में अर्बन सोसाइटीज है, सेमी अर्बन्स है, क्लस्टर्स है, then all such areas could be connected among the consumers and producers and that consumers could know the production aspect, that where from this produce have been produced from which areas and that is traceable, and that could help in providing good price to the farmers. That is very वर्टिकल फार्मिंग भी है आजकल, अर्बन फार्मिंग है, छतों के ऊपर है, और जो हमारे कल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक संपर्क किया एक एजेंसी से, लैंडस्केपिंग की थी। दे वर वर्किंग ऑन फाइंडिंग द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल, कि कितना कार्बन आ रहा है वर्टिकल फार्मिंग से। तो मैंने पूछा कहाँ पर है, खासकर जैसे केरला स्टेट है, सदर्न स्टेट्स है, वहाँ काफ़ी वर्टिकल फार्मिंग है जिससे काफ़ी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है और दैट कुड हेल्प इन आवर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय इनहेंसिंग द दिस एस्पेक्ट वर्टिकल फार्मिंग, और कम समय में हम ज़्यादा इकोनोमाइज कर सकते हैं प्रोडक्शन को भी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हम बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो वर्टिकल फार्मिंग जो है ये अर्बन में भी हो सकती है, रूरल में भी होती है, और इसको
ज़्यादा बढ़ावा भी देना चाहिए। देन हमारा हाइड्रोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है, जो आप फिश को भी साथ साथ यूज कर सकते हो। और जैसे टोमेटो है, लेट्यूस है, कुकम्बर है, आजकल बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरीज है, सब उस तरह से हाइड्रोपोनिक्स हम यूज कर सकते हैं, कर भी रहे हैं बहुत सारे किसान। और दो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉस्ट लगती है, लेकिन यदि लो कॉस्ट भी करना चाहे तो उसमें लो कॉस्ट भी हो जाती है, और दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन पेइंग गुड प्राइस। उसी तरह से हमारा कि अभी 2 साल पहले कि हमारा 6 मिलियन टन गेहूं का प्रोडक्शन कम हुआ था। तो इस तरह से ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए हमारी क्रॉप्स में कि वो टेम्परेचर को अडाप्ट कर सके। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी जमीन के अंदर जो मैन्योर को डालना चाहिए, ऑर्गेनिक वेस्ट को, जिससे वी कुड हेल्प इन बिल्डिंग आवर सोइल फर्टिलिटी विद लेस सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया है। इवन आप यू कैन यूज द नैनो यूरिया or neem coated urea, slow release. That will be helpful for releasing slowly, and it will help for enhancing the that efficiency. It will help in enhancing the efficiency of fertilizer. Fertilizer efficiency ज़्यादा होगा, और उसकी अभी 30 से 40% हमें मिलता है, जो हम जितना हम फर्टिलाइजर डालते हैं। तो definitely like nano fertilizer or neem coated urea should be applied along with the organic waste materials or FIM. Then tolerant crops should also be used to face this climate change. And animals में भी इस तरह की हमें एफर्ट करने चाहिए, ब्रीडिंग एफर्ट्स की they could also tolerate the high temperature, पोल्ट्री में, एनिमल्स में, लाइव स्टॉक में। और फीड मैनेजमेंट जो होता है उनका फूड, उसमें भी इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि 535 मिलियन हेड लाइव स्टॉक है, और वो 467.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर रिलीज करते हैं। तो इसलिए उनका हम अडॉप्शन मेजर्स बहुत जरूरी है, ताकि हम एनिमल एफिशिएंसी भी बढ़ा सके। और न्यूट्रिशन इसमें बहुत मायने रखता है, न्यूट्रिशन शुड बी enhanced so that animals could face the extreme temperature. Water technology, water smart technology like furrow irrigated raised bed, micro irrigation, rainwater harvesting, cover crops, greenhouse, leisure land leveling, reuse water, deficit irrigation, all efforts should be made for our water management technology should be used, so enhance this water efficiency at every level, at farm level, block level, state level. And अभी आपने देखा होगा हर ब्लॉक में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो वो दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स, एडवाइजरी कि बारिश कब होगा, या अगले हफ्ते में पूरा बारिश है। सो वो अवेयर होते हैं, तो उनको पता है कि टुमारो और इस हफ्ते में बारिश आ रहा है, तो किस दिन फसल बोना है, या अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फसल बोया बारिश हो गई तो जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाएगा। इसलिए द फार्मर्स नीड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एंड मैनी ऑफ द ब्लॉक्स द BDO और एग्रीकल्चर ऑफिसर दे आर प्रोवाइडिंग गुड एडवाइजरी इंफॉर्मेशन to farmers so that such happenings could be avoided. And many blocks, it is very successful. I have seen in Noida area, then Karnal and many other places that farmers are well connected with the organizations, even the research institution and extension department, and they provide regular update, daily update of all advisory, and that is very helpful for enhancing their production. And agroforestry, multifunctional landscape, all this provides good ecosystems and services like fuel wood, fruits, fodder. That could also be emphasized for our enhancing overall income of the farmers.
And there are sustainable agriculture practices like soil fertility enhancement through crop residue management, crop rotation, mixed cropping. These are all traditional technologies. But besides using the advanced technology, the traditional technologies at the farm level is also very helpful for enhancing the production. और फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम में जैसे डेयरी है, horticulture, agriculture, all should be integrated, and effort should be made for conserving the natural resources by using local specific technologies, conservation technologies. Then adoption of water management practices that increase in output productivity per unit areas. Sustainable agriculture practices such as conservation agriculture, zero tillage, crop rotation, mixed cropping, mulching. ऐसे लगता है हमें कि ये बड़े ओल्ड वर्ड है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन जितने ये वर्ड सिंपल है इतना ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रॉप रोटेशन such a look like very simple word term, but really it helps when you include legume crops with cereals. That make a lot of difference. Similarly, mixed cropping, mulching, you will find a lot of difference in soil temperature, and it helps in reducing the weeds, it helps in reducing the insect and disease, and also enrich the nutrients and keep the moisture level at surface level. So such low-cost technologies are very helpful for sustainable agriculture practices. इसी तरह से integrated nutrient, pest management are very helpful. Integrated weed management, कि हम केमिकल क्यों डालें. वैसे आपने देखा होगा फील्ड पे कि हम ये सोचते हैं, बहुत सारे किसान सोचते हैं, इवन हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और फार्मर्स भी है, साइंटिस्ट भी है. मैंने देखा कि जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी है, हमेशा दे थिंक दैट विदाउट केमिकल नथिंग कैन बी डन एंड दैट शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली इफ दे फाइंड द अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड अदर्स. लेकिन ऑलवेज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड देखना चाहिए कि क्या ये जो हम केमिकल डालेंगे हेल्पफुल है, इकोनॉमिक है. लेकिन यदि आप देखेंगे, मैंने खुद किया है फार्म पे, कि जिस एरिया में हमने केमिकल नहीं डाला और देखा हमने इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज सब कुछ आया है, लेकिन वो इतना अटैक नहीं करता कि आपको केमिकल की जरूरत पड़ी. यदि आप ना भी डालो उसमें केमिकल और अच्छा मैनेजमेंट आपने किया है, आपने क्रॉप रोटेशन भी किया, मल्चिंग भी किया, FIM भी दिया, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. इंसेक्ट आता है, एफिड आता है, वो थोड़ा बहुत देर रहता है और फिर खत्म हो जाता है. लेकिन यदि आप केमिकल डालोगे तो अपने ऐसे लगता है कि भाई केमिकल डाल दिया, प्रॉब्लम होगा. नहीं, या तो उसको अर्ली स्टेज में डालें ताकि वो जो है सही तरह से काम कर सके. जैसे वीड्स है, अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम होती है पहले 30 डेज पे, लेकिन आप यदि बाद में डालोगे केमिकल तो उससे कुछ नहीं होना, फसल को नुकसान होगा, सोइल्स में आपके रेजिड्यू रहेगा. तो ऐसे कोई जरूरत नहीं होता है इतना कि हम केमिकल डालें, अवॉइड करना चाहिए. और हमारे पास जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, दैट शुड बी यूज. आप देख लीजिए करके फार्म पे कि 2 फार्म है, एक में आप केमिकल डालिए, एक में आप नॉर्मल रहिए और जस्ट मैनेज द क्रॉप्स आइदर बाय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स, कि उसमें FIM भी डाले, न्यूट्रिएंट्स भी डाले और क्रॉप रोटेशन भी करे, और केमिकल ना डाले और एक में केमिकल डाले, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि किस स्टेज पे डालना चाहिए, किस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए. अर्ली स्टेज पे हमें थोड़ी जरूरत होती है, और यदि डिजीज आई गई है उसके बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है. और बहुत सारा चीजें हैं कि डिजीज इंसेक्ट के लिए कैरियर्स होते हैं, तो मक्खियां हैं ना, इस तरह से है, इंसेक्ट है जो कैरियर होते हैं. तो उस पे हमें देखना चाहिए कि ये डिजीज है जिसका ये कैरियर है, इसको हम स्प्रे करेंगे टाइमली एडवांस में तो ये खत्म हो जाएगा अर्ली स्टेज में. लेकिन यदि आप बाद में करेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इस तरह आजकल नई नई टेक्नोलॉजी भी है,
बहुत सारी आप रोज वीडियो देखते होंगे, और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में काफी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा और इनका इंटीग्रेशन होगा हमारे एग्रीकल्चर में, चाहे वो रोबोटिक्स है या एआई है। आजकल यूथ तो एआई बहुत यूज कर रहे हैं, आजकल लिखने में भी करने लगे सब। तो लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी है जो काफी आगे इस्तेमाल होने वाली है, और हमारी मॉडलिंग में भी हेल्प करेगी एआई, और काफी अच्छा करेगी डिजीज फोरकास्टिंग में, और हमारी वीट मैनेजमेंट में काफी अच्छा विल बी हेल्पफुल। और उस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है जैसे मैकेनाइज फार्मिंग है, और एआई से हम क्लाइमेट प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, और क्रॉप के अंदर असिस्टेंट भी डेवलप कर सकते हैं। सेंसर्स जो सोइल मॉइस्चर्स के लिए है और न्यूट्रिएंट्स के लिए है, सेंसर्स जमीन में लगाते हैं, दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। लो कॉस्ट है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। इसी तरह से जो डाटा जो होते हैं, जितने भी ज़्यादा डाटा होंगे उतने हमें हेल्पफुल होंगे, चाहे वो सप्लाई चेन है कि हमारा प्रोडक्शन सही जगह और सही टाइम पे उसका अच्छा इनकम मिल सके, या हम एनिमल हेल्थ के मॉनिटरिंग में भी हमें काफ़ी अच्छा हेल्प होता है एआई से। और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जैसे बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी विद मैकेनाइज्ड फार्मिंग, एआई इज हेल्पफुल फॉर क्लाइमेट प्रिडिक्शन, और एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी से हम फसल के अंदर रेजिलिएंट डेवलप कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को फेस करने के लिए। इस तरह सेंसर्स भी एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए है, फर्टिलाइजर्स के लिए है, और अपने यील्ड को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा हम अपना डाटा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। इसी तरह एनिमल हेल्थ को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई बीमारी आ रही है, नहीं आ रही है, किस तरह से हेल्थ हम इसका मेंटेन करें, या एनिमल्स को हम ट्रेसेबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं, कहाँ पर है अभी, उसकी वेयर अबाउट्स वो भी हम दे सकते हैं सेंसर से। और एग्रीकल्चर में आजकल डिजिटाइजेशन बहुत है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे इंजीनियर, खासकर मैनेजमेंट पर्सन्स, दे आर इंटरिंग इन एग्रीकल्चर, एंड 6,500 अभी स्टार्टअप यूज हुए हैं, और उसमें मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग से है या मैनेजमेंट से है। हमारे एग्रीकल्चर भी ग्रेजुएट्स हैं आजकल जो पढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट देयर। सो either they need support or technologies or training, should be made at every level, that these agricultural students at UG level, they understand all these technologies, and good training is provided to them, so that they could also involve themselves in supply chain management, marketing, branding, and others, other startup, and they could also, and there is not much cost involved. They know about production, they know about agriculture, farming practices, but they lack the advanced technology in computer science. And computer science persons, they lack the production aspect. So either they can combine themselves, they can work integrated way. Engineers and agriculturalists together can develop the good model, can use the AI, can use all these technologies. Because if it do, then one way or other, they'll be suffering a lot, and still they are facing this problem for initiating good, successful startup program in agriculture development. एंड जो हमारी डिजिटाइजेशन है एग्रीकल्चर में, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे हमारी रूरल एरियाज में है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हैव टू बी मेंटेन्ड, and not much other things are required. थोड़ी लिटरेसी की जरूरत होती है। आजकल मोबाइल फोन है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, तो इसमें थोड़ी उनकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। Then even farmers can start involving themselves in marketing aspect and supply chain. Supply chain is such a big aspect in India, vast country, than thousands of persons could be trained and could get themselves involved in supply chain management. They will get good remuneration, and this will also be helpful for providing good support to the farmers and also to the consumers. So some policy is also required for this digital transformation. This will be helpful for
providing information to the consumers, to the farmers, in providing good prices, and our system of supply chain will be more efficient. Then AI-based IoT sensors enhances the farm equipment performance. This could be हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, फ्यूल भी इससे हम काफ़ी सेव कर सकते हैं, और टेम्परेचर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट उसमें भी हमारा काफ़ी हम सेव कर सकते हैं, और इक्विपमेंट एफिशिएंसी भी इससे बढ़ती है एआई से। तो डाटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी टू एग्रीकल्चर इज इंटीग्रेशन ऑफ आईए बेस्ड सेंसर्स है, आईओटी सेंसर्स है, फार्म मशीनरी इक्विपमेंट्स. These sensors enable the collection of thousands of data that provide especially for enhancing our, could be used for enhancing our performance or of the machinery, and could help in saving the fuel, and could avoid this high temperature. Then these data-driven technology are also helpful for streamlining our agriculture operation through advanced agriculture management system. हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, साथ साथ में मॉडर्न सिस्टम है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए, और उसमें कोई ज़्यादा एजुकेशन की इतना ज़रूरत नहीं है. यदि हमारी एजुकेशन भी कम है रूरल एरियाज में, तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है. So duration training to the farmers could be very helpful for using these technologies, and digital technology, especially for enhancing the efficiency, good financial management, good technologies, and this aspect will be very helpful. Especially these systems allow farmers to update reports electronically, ensuring accurate, up-to-date information regarding crop yields, livestock inventory, resource utilization. जो हमारा रिसोर्स होता है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स है या लैंड रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, उसमें हम काफ़ी अच्छा ऑटोमेशन से सेव कर सकते हैं. और जो डाटा है, दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर टेकिंग आवर डिसीजन एंड फॉर ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट्स. So this helps and provide good benefit to the farming community. इसी तरह से these data definitely they helps in financial management system, and by integrating the financial data with other relevant information such as crop yields, input cost, farmers has a holistic view of their operations. उसमें बहुत सारी operations होती है जिसको वो integrate कर सकते हैं, and that helpful for in accurate measurement, accurate system, enhancing the system, and cost भी save हो जाती है इसमें. These enhance the ability to analyze financial data real time, empowers farmers to make data driven financial decision, ultimately enhance their profitability and sustainability. तो ये जो हमारे डाटा है, that is helpful for our sustainability, helpful for taking timely decision, helpful for saving the resources, and enhancing the efficiency at every level. Then this also helpful for transparency, traceability in food supply chain by providing user-friendly traceability features that help farmers track their products. कि फार्म से कंज्यूमर के पास जो गया उसको ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे गया. मैं भी कर सकता हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं ट्रेस कर सकता हूँ. तो ट्रेसेबिलिटी आजकल बहुत जरूरी है. और यदि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट जो मैं खा रहा हूँ किस फार्म से है, उसमें केमिकल यूज हुआ कि नहीं हुआ, केमिकल यूज नहीं हुआ उस फार्म का है, तो मैं डेफिनेटली आई विल पे दैट मोर. सो देयरफॉर एफपीओ एंड कंज्यूमर्स इंटरेक्शंस आर रिक्वायर्ड. वो बहुत जरूरी है, उसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. तो अपने सिस्टम में हमें फोकस करना है कि how to involve youth in providing information and especially engaging them through use of technology for transfer of technology and also for providing good materials and to involve them in supply chain management that will enhance our efficiency at every level. Then जो RFID tags है, farmers can easily monitor the journey of their produce, और ट्रेसेबिलिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में.
Then this data-driven technology also helpful for taking decisions for agribusinesses कि कहाँ पर हमें इनकम मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है, किस एरिया में बेच सकते हैं, कंज्यूमर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हर जगह के लिए डाटा चाहिए, चाहे फार्मर्स का डाटा हो, प्रोडक्शन का डाटा हो, मार्केटिंग का डाटा हो, प्राइस का डाटा हो। ये सब डाटा का ही आजकल बेस है जो हमें दैट कुड हेल्प इन providing good remuneration to the farming community and also for providing good employment to the youth and engagement and providing the good quality that helpful for traceability and जो हमारी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज है वो भी बढ़ जाएगी और इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। जो हम डबलिंग की बात करती है वो भी बढ़ जाएगी और सस्टेनेबिलिटी पर तो जरूर भी फर्क होता है। So farmer can make more accurate prediction about their optimum planting, harvesting time, enabling them to maximize yields, minimize losses. जब हम डबलिंग की बात करते हैं तो इनपुट कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, लॉस को हम कम कर सके, दैट इज द बेस। Then this predictive analytics can assist in proactive pest management, allowing farmers to take preventive measures before infestation. बहुत सारे आजकल मॉडल बनाए हैं, मैं देख रहा था, प्रोजेक्ट करते हैं हमारे सामने कई बार इंजीनियर्स, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। वो बता देते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो इंसेक्ट का अटैक होगा, यहाँ पर तो वीड का आएगा, अभी ये वीड है, उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, मशीन लर्निंग यूज करते हैं साइंटिफिकली। तो दिस इज आल्सो हेल्पफुल बट they lacks the technological aspect. So agriculture and engineer both have to work together and integration का जरूरत है आजकल for not only for enhancing income or production but for good technical aspect. Then integration of data driven technology also helpful for industry. And these IA-based sensors, IoT devices, advanced analytics are very helpful for carried out different farm operations. And then this IoT effective surveillance of farms with the help of sensors, जैसे light है, humidity है, temperature, soil moisture, health of the equipment, automatic irrigation system, कि मुझे 1 एकड़ में पानी देना है, कितनी डेप्थ पे देना है, कितने समय में हो जाएगा, सब एक्यूरेसी है। तो उतने में हम अपना मोटर को कैलिब्रेट कर देते हैं, तो वो 1.5 घंटा लगना है, 2 घंटा लगना है, 4 घंटा उतने का कैलिब्रेशन करके तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और लैंड का लेजर से हम लैंड लेवलिंग करते हैं, जिससे हम कम पानी में ज्यादा पानी भी देते हैं, क्योंकि फ्लडिंग भी हम करते हैं तो कहीं ज्यादा है कहीं कम, और यदि लेवल फिल नहीं है तो बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भी ये हेल्पफुल होता है। और ड्रोन्स का भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, जो बड़े फार्म हो रहा है, मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ, स्प्रेइंग फर्टिलाइजर, फोरकास्टिंग क्रॉप यील्ड्स की हमारा यील्ड कितना होगा, फोरकास्ट हो जाता है कि मेरा यील्ड कितना होने वाला है। दैट आल्सो बाय ट्रैकिंग वेदर चार्ट कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उसके लिए एक प्रोविजन है दैट दे हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग दिस 4 lakhs support system and under precision farming, that big data analytics, robotics enable approach that monitors farms, collect information like weather, then normalize difference vegetation index जो हमारा vegetation greenness को indicate करता है, moistures, terrain ऊपर नीचे है, एरिया हाई है लो है, soil moisture map। तो ये बहुत जरूरी है यदि साइंटिफिक कल्टीवेशन हमें बेस रखना है, और वो रखना भी चाहिए। एंड दिस हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड इनहेंसिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। देन मेकिंग डाटा एनालिटिक्स, दैट इज data driven decision by analyzing data collected from every sensor at farm, equipments used to deliver optimized smart farming। ये स्मार्ट फार्मिंग जब हम करते हैं, स्पेशली फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड आल्सो टू फेस द ड्राउट मिटिगेटिंग, टू रिड्यूस द मिटिगेटिंग इफेक्ट,
then all these new technology could be helpful for making our system smart. Then nano tools hai, nano pesticide, nano biosensors, nano enable remedial strategies for contaminated soils, focused on improving yields, food quality. नैनो फर्टिलाइजर्स तो आपको सब बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब घट जाती है. तो ये न्यू टेक्नोलॉजीज है, दैट इज वेरी हेल्पफुल. एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑटोनोमस रोबोट्स टू हैंडल manual tasks, leveraging computer vision, deep learning algorithm for crop and soil monitoring, applying predictive analytics to track, predict environment impact on yield. आगे क्या टेम्परेचर होने वाला है नेक्स्ट सीजन में, कितना इम्पैक्ट कर सकता है हमारी क्रॉप में, क्या हम फसल को जल्दी बोए, क्या हम फसल को लेट बोए, कैसे किस समय ये हाई टेम्परेचर हो सकता है, एडवर्स वेदर में ये इस तरह से हो सकता है. तो वो सब मॉडल्स है जो हमें प्रिडिक्शन की जरूरत होती है, और बाय दीज टेक्निक्स वी कैन प्रिडिक्ट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द डिसीजन. क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी है, ये डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है. और जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा है. और जैसे यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन, इनपुट्स प्रोवाइड सच एज एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, सीड्स आर दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट डायरेक्ट टू फार्मर सेल्स चैनल्स. जो हमारा सेल परचेज है, और उस तरह से लिंकेज की जरूरत होती है. जैसे यूपीएल है, यूपीएल प्रोवाइड्स मैकेनाइजेशन सर्विसेज एग्रोकेमिकल टू फार्मर्स थ्रू इट्स नर्चर फार्म डिजिटल प्लेटफॉर्म. और कंपनी एक्सपेंड टू प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग, एडवाइजरी, मार्केटिंग सर्विसेज. उस तरह महिंद्रा भी आजकल ऑफर्स कर रही है ट्रैक्टर रेंटल सर्विसेज. Then there are firms that operate in procurement, processing, selling of agriculture products. They also started integrating backward supply chain, create market linkage for farmers. और इस तरह से ITC है जो core output player है, uses each of all network to expand direct farm to direct from farm procurement over past more than 20 years. And इस तरह से नई नई टेक्निक्स है जो फार्मर से कनेक्ट होती है, और कैसे ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है फार्मर्स को, उस तरह से छोटे छोटे लेवल पे है, लेकिन ये ज़्यादा एरिया में भी इसकी ज़रूरत है, जिससे अच्छा नेगोशिएशन हो सके और क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर को डिलीवर हो सके. और अब हमारा क्या होना चाहिए आगे, कि हमारा रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम ऑल एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सोर्सेज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड. Structured training is essential to build confidence in stakeholders. ट्रेनिंग देने से काफ़ी फर्क होगा, तो ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है. लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर टाइम टू टाइम रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग देना चाहिए किसान को, और पार्टिसिपेट करना चाहिए यूथ को ज़्यादा आगे आना चाहिए इसमें. और जो हमारा गैप है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में और हमारी एग्रो टेक्नोलॉजीज है, उसमें भी हमें एफर्ट करना चाहिए. क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. और जो फार्मर्स स्कीम्स है, फैसिलिटेशन सेंटर्स आर नीडेड. तो स्किल्स ट्रेनिंग देने की जरूरत है, छोटा छोटा, एक वीक, 3 दिन का, जिससे हम जो इक्विपमेंट्स है उसका अवेयर कर सके, उसकी कॉस्ट बता सके, कहाँ से मिलेगा ये बता सके, उसका लाभ क्या होगा. और फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को, जो एफपीओ के थ्रू और कंज्यूमर्स के थ्रू, उनको हम लिंक कर सके. और जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, वहाँ पर हम यूथ को इन्वॉल्व कर सके, ताकि फार्मर्स के रीच में, उसको फार्मर्स के नज़दीक में, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, उसको टेक्नोलॉजी मिलती रहे कस्टम हायरिंग सेंटर से. और उस कस्टम हायरिंग सेंटर्स को यूथ 4, 5, 6 मिलके उसको स्टार्ट करें, जिससे टेक्नोलॉजी भी फार्मर्स को मिलती रहेगी, और यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी होगा नॉमिनल कॉस्ट में, वो देते रहेंगे उसको, और किसान का जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो भी एडवांस होगी. और कोलेबोरेशन बिटवीन फार्मर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फंडिंग एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, सभी कंबाइंड एफर्ट्स करें, जिससे हमारा
agricultural technology could be used for our sustainable agriculture practices and enhancing the income of the farmers. So इस तरह से मैं जस्ट एक व्यू देना चाहा आपको, और स्किल्स की जरूरत है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में। और मैं ये देख रहा था, बहुत इंटरेक्शन किया मैंने कि इंजीनियर आजकल एग्रीकल्चर में, स्टार्टअप में, सब जगह इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, यूथ इन्वॉल्व है, और उनको बेसिक जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो नहीं है। वीड को, पेस्ट, डिजीज, इरिगेशन, बहुत सारी चीजें नहीं पता। इरिगेशन देना कब है, किस फसल में है, कितना पानी देना चाहिए। टेक्नोलॉजी उनके पास है कि टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है, प्रिसीजन का तो जब कर पाएंगे जब उनको टेक्निकल नॉलेज होगा। तो ये बहुत इंटीग्रेशन जरूरत है। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यूथ, फार्मिंग, द इनोवेटिव फार्मर्स and computer-based engineer, civil engineer, mechanical engineer, they work together, make a group, involve themselves in through the customizing sector, through the FPO, through consumer societies, and could develop themselves involve themselves in agriculture practices by starting their startups. And इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है जो काफी हद तक सफल हमें बना पाएगी इस हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने में, क्योंकि सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, प्रोडक्शन सिस्टम में ज़रूरत है, कस्टम हायरिंग की जो ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे ज़रूरत है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में ज़रूरत है और इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you for your insightful presentation on agri-technology for sustainable agriculture with a special focus on rain-fed areas. Your discussion on challenges in rain-fed agriculture, water conservation methods, schemes, and modern technology was truly enlightening. We deeply appreciate the valuable knowledge and practical insights you have shared with us today. I would like to invite our participants to ask any questions they may have, which sir can address. Please feel free to post your queries in the chat box. Sir, I think your explanation was so good like there is no question from participant side. You explained it so well, sir. No questions, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Nice Thank you. presentation. Thank you, sir. Thank you. Thank you And so thank much, you very sir. much to participants also. And sir having my contact, so if anyone needs further information and seek further about training interactions, then I'll be in touch. And definitely, especially we always give focus for improvement of youth and connect the youth in different way. So you are all welcome, all participants. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. As we conclude tonight's program, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed presenters. Your sharp insights and extensive experience have been truly inspiring, enriching the knowledge of all participants. It has been an honor to learn from you. We extend our best wishes for your future endeavors. I also thank our participants for their attentiveness and active engagement throughout the session. On behalf of Vital Biotech, the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रा, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur, Chhattisgarh, Farmers Park, Hyderabad, Telangana, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to our esteemed guests, distinguished speakers, and enthusiastic participants for joining this 21 days winter school training program. Your patience, active engagement, and attentiveness throughout the program have been truly admirable. Thank you so much. Have a delightful evening. Thank you.